ये जो साड़ियाँ हैं ये मेरी मॉम की साड़ियाँ हैं और माँ की जो साड़ियाँ हैं उनको मैंने कुर्ते में कन्वर्ट किया हुआ है क्योंकि उन्होंने बोला था कि ये कुछ वो चाहती हैं कि मैं कुर्ते में बना लूँ। तो ये कुछ स्पेशल कुर्ताज़ हैं जो मैंने अपनी माँ की साड़ियों से बनाया हुआ है। वेट आई विल शो यू वन ऑफ देम। दिस इज़ अ वेरी प्रिटी वन। ये एक साड़ी थी लेकिन अब ये एक कुर्ता बन चुका है। आई हैव ऑल दिस टी शर्ट्स जो मैं पहले पहना करता था लेकिन अब ये आप देख रहे हैं इनको टच भी नहीं किया मैंने बहुत टाइम से, बट आई थिंक आई जस्ट कीप देम फॉर some other kind of shoots that I have to use for. So this is a very simply organized wardrobe जहाँ पर my maximum space is dedicated to my gym wear. Now as you all know मैं gym बहुत जाता हूँ and gym is some place which is like my happy place. So all my collection, all my t-shirts, all my shorts, all my tracks are all separated and organized and kept here because I need a lot of new gym clothes every day. पहले मैं टी शर्ट बहुत ज़्यादा पहनता था लेकिन अभी रिसेंटली मुझे ऐसा लगा, मुझे किसी ने बोला कि आई शुड ट्राई एंड चेंज माई लुक. तो आई थॉट वाई नॉट गो इन द क्लासी डायरेक्शन. सो आई वेयर अ लॉट ऑफ chinos and a lot of slim fit shirts, especially from Van Heusen, which is my favorite brand. And all these denims are from Jack and Jones, Levi's, all these popular places because I think they fit me perfectly. उसके बाद ये है मेरे लॉकर्स. लॉकर्स क्योंकि लक्ष्मी माता इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड why not have a special place only to keep all the important documents, whatever little bit of cash you want to keep in the home. Basically एक लड़के के वार्डरोब के हिसाब से मेरा वार्डरोब बहुत ज़्यादा elaborate है लेकिन फिर भी इतना नहीं है कि मैं आपको बहुत देर तक कुछ दिखा सकूं because I think women have a lot more prettier dresses in their wardrobe. Hi Galata India, welcome to my home and today I'm going to show you my wardrobe. So follow me. Hi Galata India, welcome to my home and today I'm going to show you my wardrobe. So follow me. So this is my personal bedroom, which is my space. That's why you have only my pictures all around. Also guys, I want to show you this beautiful handmade portrait of myself which was sent to me by a fan from Delhi. She, I think, makes beautiful portraits and her name is Neha Sharma and she has gifted me this through Instagram and it's so beautiful. It was so beautifully created कि मुझे पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि ये किसी ने हाथ से बनाया है. इतना ही डिटेल्ड, इतना एक्यूरेट मेरा फेस का जो उन्होंने लुक निकाला है. So I just had to place it in a place in my bedroom where everybody can see it because I'm so proud of it and I'm so proud of this girl Neha who's made this. So I would like all of you to see it and enjoy it. Have a look at this. It's really, really beautifully made. आपको लगेगा नहीं कि ये हाथ से बना है. ये प्रिंट आउट लगता है, but trust me, it's a handmade portrait. And this is how I like to keep my bedroom. And now I'll show you the most interesting part, which is my wardrobe. Come. So this tiny but enough walk-in wardrobe is the place where I have all my clothes. ऐसा एक और है मेरा घर में जहाँ पे मैं सिर्फ अपने शूज़ रखता हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे शूज़ हैं और वो आप लोग शायद पहले देख चुके हैं उस कलेक्शन को. बट दिस इज द वार्डरोब वेयर आई एम गोइंग टू शो यू वेयर आई कीप व्हाट. सो दिस इज अ वेरी सिंपली ऑर्गेनाइज्ड वार्डरोब जहाँ पर माई मैक्सिमम स्पेस इज डेडिकेटेड टू माई जिम वेयर. नाउ एज यू ऑल नो मैं जिम बहुत जाता हूँ एंड जिम इज सम प्लेस विच इज़ लाइक माई हैप्पी प्लेस. तो all my collection, all my t-shirts, all my shorts, all my tracks are all separated and organized and kept here because I need a lot of new gym clothes every day. Then I have my formal clothes यहाँ पर, a lot of shirts, a lot of formal shirts which I love to wear. पहले मैं t-shirt बहुत ज़्यादा पहनता था लेकिन अभी recently मुझे ऐसा लगा, मुझे किसी ने बोला कि I should try and change my look. So I thought why not go in the classy direction. So I wear a lot of chinos and a lot of slim fit shirts. Especially from Van Heusen, which is my favorite brand. And all these denims are from Jack and Jones, Levi's, all these popular places because I think they fit me perfectly. Apart from that, I have this collection of jackets जो कि मैं वेट करता हूँ कि बॉम्बे में, मुंबई में जब थोड़ी सी ठंड पड़ेगी तो मैं उसको यूज़ कर पाऊँगा. So there is another section having a lot of jackets there also, but these are a few which I have kept here. उसके बाद ये हैं मेरे लॉकर्स. लॉकर्स क्योंकि लक्ष्मी माता इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाई नॉट हैव अ स्पेशल प्लेस ओनली टू keep all the important documents, whatever little bit of cash you want to keep in the home. And then again,
some more jackets, and this is where I put my Indian wear. अब इंडियन वेयर पहनने के मौके कम होते हैं क्योंकि यूजुअली हमें जितने इवेंट्स मिलते हैं कहीं पर अगर जाना होता है दिवाली पे दशहरा पे तो वी गेट स्टाइल्ड बाय लॉट ऑफ स्टाइलिस्ट, बट ये जो साड़ियाँ हैं ये मेरी मॉम की साड़ियाँ हैं। और माँ की जो साड़ियाँ हैं उनको मैंने कुर्ते में कन्वर्ट किया हुआ है क्योंकि उन्होंने बोला था कि ये कुछ वो चाहती हैं कि मैं कुर्ते में बना लूँ। तो ये कुछ स्पेशल कुर्ताज हैं जो मैंने अपनी माँ की साड़ियों से बनाया हुआ है। वेट, आई विल शो यू वन ऑफ देम। दिस इज़ अ वेरी प्रिटी वन। ये एक साड़ी थी लेकिन अब ये एक कुर्ता बन चुका है। तो इट्स अ वेरी स्वीट कुर्ता दैट आई मेड। अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव ऑल दिस टी शर्ट्स जो मैं पहले पहना करता था, लेकिन अब ये आप देख रहे हैं इनको टच भी नहीं किया मैंने बहुत टाइम से, बट आई थिंक आई जस्ट कीप देम फॉर सम अदर काइंड ऑफ शूट्स दैट आई हैव टू यूज फॉर। बेसिकली एक लड़के के वार्डरोब के हिसाब से मेरा वार्डरोब बहुत ज़्यादा एलैबोरेट है, लेकिन फिर भी इतना नहीं है कि मैं आपको बहुत देर तक कुछ दिखा सकूं, बिकॉज आई थिंक women have a lot more prettier dresses in their wardrobe than a guy. So over and all, I think this is the basic wardrobe that I usually need every day to dress myself up for any occasion, and I hope you enjoyed it. हुआ तो बहुत कुछ, अभी तक तो मैंने कहानी वहीं तक की बताई कि मैं एक्टर बना कैसे, आगे लेकिन की एक्टर बताइए। बन जाने के बाद स्ट्रगल नहीं होगा ऐसा तो नहीं होता ना। करेक्ट। इस इंडस्ट्री में आने के बाद भी कई बार स्ट्रगल ऐसा पॉप करता है आपके सामने कि आपको लगता है ओह, वाज आई रेडी फॉर दिस, डिड आई इवन प्लान फॉर दिस, डिड आई इवन एक्सपेक्ट दिस। सब कुछ करने के बाद मैं एक शो करने यहाँ पे आया, एक्टर बन गया। अब समझ ही रहा हूँ, सीख ही रहा हूँ मुंबई के तौर तरीके, एक्टर क्या होता है, इंडस्ट्री क्या होती है। आई वॉज क्वाइट इनोसेंट, वेरी नाइव। इससे पहले कि कुछ समझ पाता, विद इन 3 months आई हैड टू एग्जिट दैट शो because of politics. Some politics happened, and I had to exit that show. Now I'm in Mumbai, I've given up everything that I had worked for, and this leap of faith I took got over within 3 months. अब क्या? अब तो कुछ भी नहीं है मेरे पास। डिग्री भी छोड़ दी, बॉम्बे भी आ गया हूँ। अब वापस जाके भी क्या करूँगा दिल्ली में, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो ऑडिशन देने स्टार्ट किए। आराम नगर गया, अंधेरी गया, आराम नगर बुला ही लेता है सबको। ऑडिशंस बहुत दिए, बैक टू बैक 15-20 ऑडिशन दिए, किसी में सिलेक्शन नहीं हो रहा। परेशान हो गया, डिप्रेशन में आने लगा, टेंशन आने लगा, क्योंकि आप बचपन से आपने और कुछ सुनाओ ना सुनाओ, आपने ये ज़रूर सुना होता है कि फलाने का बेटा बॉम्बे गया था एक्टर बनने, बर्बाद हो गया। मासे का बेटा बॉम्बे गया था मॉडलिंग करने के लिए, वापस आ गया, कुछ नहीं हुआ, दुकान पे बैठा है। और मेरी तो दुकान भी नहीं है मेरे पापा की, तो हम तो नॉर्मल यू नो सर्विस क्लास इंडस्ट्री के लोग हैं। डैड वॉज एन अकाउंटेंट, मॉम इज़ अ होम मेकर, तो कोई धंधे भी नहीं है कि जाके गले पे बैठ जाएंगे, वो भी नहीं है सिस्टम। तो करूँ क्या? अच्छा, ऑडिशंस दे रहा हूँ। एक दिन एक ऑडिशन दे के निकला, हल्का हताश ही था। सडनली आउट ऑफ द ब्लू एक व्हाट्सएप मैसेज आया, व्हाट्सएप तो था ही उस टाइम पे, टेक्स्ट मैसेज आया। उस टाइम पे कोऑर्डिनेटर्स ना क्या करते थे कि एक बल्क मैसेज टाइप करके बल्क में भेज देते थे, सो एंड सो ऑडिशन ऑफ सो एंड सो चैनल, सो एंड सो टीवी हैपनिंग एट दिस प्लेस, रेफरेंस दिस, कि वहाँ जाके मेरे रेफरेंस से तुम ऑडिशन दे के आओ, कल को तुम्हारा सिलेक्शन होगा तो मुझे अपना 15-20% जो भी कमीशन कट दे देना। हाँ, वो उसने शायद 100-150 लोगों को भेजा होगा, किसी ने। मेरे पास भी आया। अच्छा, उसमें नंबर था, नाम नहीं था। तो मेरे लिए सिर्फ एक मैसेज था कि कहीं एक ऑडिशन हो रहा है, और मैं कहीं से निकला था ऑडिशन दे के, तो मुझे पता था होने नहीं वाला है क्योंकि वो अच्छा नहीं हुआ था। मैंने कहा अब निकला ही हूँ, पास में ही है ये वाला, ये भी दे देता हूँ, और कोई ऑप्शन रहे नहीं, अब यही करना है। तो गया वहाँ पे, दिया ऑडिशन। ऑडिशन देने के बाद कोई न्यूज़ नहीं आई, 15-20 दिन, 1 महीना चलता रहा। एक दिन मेरी एक बहुत क्लोज हैं, शी इज़ लाइक अ मदर, मेरी टीचर थी, उनका मुझे फ़ोन आया शाम में। उन्होंने मुझे बोला कि निशांत, तूने एक ऑडिशन दिया था ना बेटा किसी शो का, राम जी का नाम था उसमें। मैंने कहा हाँ, राम मिलाई जोड़ी, जी टीवी का शो था। कह रही तू वो कर रहा है? मैंने कहा 1 मिनट, 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले मैंने बॉम्बे में कोई ऑडिशन दिया है, आप आज 8:30, 9, 10 बजे रात को नींद से उठ के मुझे बोल रहे हो सडनली कि मैं कर रहा हूँ। आप जो दिल्ली में बैठे हो, आपका लेना देना नहीं इस इंडस्ट्री से, आप किसी को जानते नहीं हो। मैंने कहा आप कैसे बोल रहे हो, क्या क्या लॉजिक है? कि सर मुझे गट फीलिंग आई है, मैंने देखा है, मुझे राम जी ने दिखाया है कि तू ये कर रहा है। उन्होंने मेरे सामने आके बोला है तू कर रहा है। शी इज़ अ आर्डेंट बिलीवर ऑफ राम जी, मैं भी हूँ, मेरे घर में मंदिर भी है राम जी का।
मैंने कहा माँ माँ बोलता हूँ प्यार से उनको, मैंने कहा आप सपने में शायद देखा होगा आपने कुछ, क्योंकि आप जानते हो कि मैं भी आजकल थोड़ा परेशान स्ट्रेस में हूँ, तो मेरे को लेके आप भी स्ट्रेस में होगे शायद। तो तू कर रहा है, मैं बोल रही हूँ ना, मैंने देख लिया है, तू कर रहा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ओके, चलो अब सो जाओ, कल बात करते हैं, आप सो जाओ। कहते तो मान ही नहीं था। मैंने कहा मैं मान रहा हूँ। मैंने बच्चों की तरह उनको फिर मैंने कहा ठीक है चलो सो जाओ, कोई बात नहीं। बोलेगा नींद में से उन्होंने उठ के सपना देखा है। नेक्स्ट आई गेट अ कॉल फ्रॉम दैट प्रोडक्शन हाउस सेइंग दैट आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं राम बिलाई जोड़ी के लिए। दिस इज आफ्टर अ मंथ एंड हाफ ऑफ गिविंग एन ऑडिशन। और बॉम्बे में क्या होता है, आप एक ऑडिशन देते हो तो 10-15 दिन में अगर नहीं आंसर आता तो नहीं आता है, नहीं आ रहा है फिर, कास्टिंग हो हाँ। गई, आगे बढ़ गई होती चीज़ें। अब डेढ़ महीने के बाद मुझे फ़ोन आया उनका कि आपको बुलाया है। तो मैं पहले थोड़ा हक्का बक्का रह गया, सरप्राइज कि ये क्या मिरेकल है। और मेरी लाइफ में तो बहुत मिरेकल्स हैं, मुझे लगता है भगवान मेरे को गॉड्स कभी कभी चाइल्ड। मेरे साथ ही हैं, मतलब हाथ पकड़ के कर रहे हैं चीज़ें, भले ही मैं फेथ ना रखूँ, वो मेरा साथ देते हैं। मैं गया, मैंने वहाँ पे एक लुक टेस्ट किया मेरा, उन लोगों ने वहाँ कपड़ा वपड़ा में एक ऑडिशन और लिया, और फिर मुझे बोला कि आपका एक फाइनल लुक टेस्ट करना है हमको कैमरा पे। हम्म। मैंने इनको फ़ोन करके बताया, मैंने कहा माँ आप तो सही थे, बुलाया इन लोगों ने मुझे। कहते मैं बोल रही हूँ तू कर रहा है, तेरा हो गया है, तू ही कर रहा है वो शो, मैंने देख लिया है। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं लुक टेस्ट देने गया, वहाँ पे उस टाइम के एक बहुत ही सुपरस्टार, एक सुपर हिट टेलीविजन एक्टर था, किंगशुक महाजन, हाँ 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 विदाई हाँ। शो से आया था। करेक्ट, हाँ। वेरी स्वीट गाय, आई नो हिम हाँ। वेरी वेल, अभी भी जानता हूँ मैं, अभी मिले थे रिसेंटली। तो लुक टेस्ट में अब वो विदाई करके आया है एज अ सुपरस्टार ऑफ स्टार प्लस शो, और मैं एक नया बच्चा जिसको कोई नहीं जानता। हम दोनों को एक ही कैरेक्टर के लिए चैनल टेस्ट कर रहा था, चैनल दोनों को एक साथ लुक टेस्ट कर रहा था कि इनमें से जो अच्छा लगेगा ले लुक में, लेंगे। जो हमारा बैठता है, हमारा कैरेक्टर, हम उसको ही फाइनल करेंगे। मैंने उसको देखा, मेरी हवा एकदम फुस। मैंने कहा यार इसके सामने मुझे कौन लेगा, ये तो सुपरस्टार है टीवी पे राइट नाउ। मैंने उनको फ़ोन करके बोला, मैंने कहा माँ ऐसा नहीं होगा, आपने देखा था ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब नहीं हो सकता, ये तो ये बंदा खड़ा है मेरे सामने। He said, तू कर रहा है, मैं बोल रही हूँ तो टेंशन मत ले, बात खत्म, तेरा ही है वो, तू जा अपना कर, क्या काम तेरा ही है। मैं गया, मैंने कर लिया ऑडिशन अपना, जो भी लुक टेस्ट होता है। 2 दिन बाद उनका फ़ोन आया कि वी वांट टू मीट यू इन द ऑफिस। मैं गया उस हम्म। प्रोडक्शन हाउस के ऑफिस में मिलने के लिए। They gave me the contract, they said sign it, the channel has finalized you. So I became a main lead actor for ZTV out of nowhere, which was my first solo main lead show, and it was a super hit show which gave me a lot of fame.